جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ملک خیالی ہمارا ایک مزیدار کردار ہے جو اپنی خیالی دنیا میں رہتا ہے۔ تو آج کی کہانی ہے ملک خیالی اور 1 روپے کا سکہ۔ شروعات۔ اوہو، یہ کیا؟ ملک خیالی نے گلی کے کونے پہ چمکتی ہوئی چیز دیکھی اور ایسے اچھلا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے کوئی سپرنگ لگا ہو۔ 1 روپیہ، پورا 1 روپیہ! آج تو میری قسمت جاگ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ پھیلائے۔ اے اوپر والے، بس اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں امیر بننے والا ہوں۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ روپیہ ابھی اس کی جیب میں نہیں، نالی کے کنارے پر پڑا تھا، اور ملک خیالی کے خواب، وہ تو ہمیشہ جیب سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ حلوائی کی دکان سے گرما گرم پوڑیوں کی خوشبو اڑ کر گلی میں پھیل رہی تھی، مگر ملک خیالی کو نہ اذان سنائی دی، نہ چڑیاں، نہ پوڑیاں۔ اسے صرف وہ 1 روپے کا سکہ دکھائی دے رہا تھا جو دھوپ میں ایسے چمک رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ ملک خیالی دبے پاؤں آگے بڑھا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ نالی کے اس پار منّے کے ابا اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس پار خالہ کبریٰ برتن دھو رہی تھی۔ موقع اچھا تھا۔ اس نے جھک کر سکہ اٹھایا، پھونک مار کر مٹی جھاڑی اور مٹھی میں بند کر لیا۔ بس اسی لمحے ملک خیالی کا دماغ خیالی موڈ میں چلا گیا۔ خیالی پلاؤ، پہلا چمچ۔ 1 روپے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ملک خیالی نے مٹھی کو دل کے قریب رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگر میں اس 1 روپے سے ماچس کی ڈبیا خرید لوں، 1 روپے کی ماچس مل جاتی ہے، پھر میں گلی میں آواز لگاؤں گا، لو جی، ماچس لے لو، تیلی جلاؤ، چولہا جلاؤ۔ 1 ڈبیا میں 50 تیلیاں ہوتی ہیں۔ میں ہر تیلی 1 آنے کی بیچوں گا۔ 50 آنے، مطلب اس نے انگلیوں پر حساب کیا، 3 روپے 2 آنے۔ واہ ملک خیالی، وہ خود ہی اپنے آپ سے بولا اور اپنی پیٹھ تھپ تھپائی۔ 3 روپے 2 آنے سے میں کیا کروں گا؟ ہاں، میں 3 روپے کی مونگ پھلی خریدوں گا۔ سردیوں میں مونگ پھلی بھی بہت بکتی ہے۔ اسے بھون کر چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بناؤں گا، 1 پوڑیا 4 آنے کی۔ 3 روپے میں 12 پوڑیاں بن جائیں گی۔ 12 ضرب 4، 48 آنے، یعنی 3 روپے۔ یہاں پر ملک خیالی کا حساب تھوڑا گڑبڑا گیا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ خوابوں میں حساب کون کرتا ہے؟ گلی کا سفر اور دوسرا چمچ خیالی پلاؤ۔ ملک خیالی اب گلی میں ایسے چل رہا تھا جیسے وہ کوئی بادشاہ ہو اور گلی اس کی سلطنت۔ ہر قدم پر اس کا خواب بڑا ہو رہا تھا۔ 3 روپے سے میں کیا کروں گا؟ ہاں، میں ایک مرغی کا چوزا خریدوں گا۔ چوزا بڑا ہو کر مرغی بنے گا۔ مرغی روز 1 انڈا دے گی۔ میں انڈے بیچوں گا، 1 انڈا 1 روپے کا۔ 30 دن میں 30 روپے۔ 30 روپے سے میں بکری کا بچہ لے آؤں گا۔ بکری بڑی ہوگی، دودھ دے گی، دودھ بیچوں گا، پھر گائے، پھر بھینس، پھر میں ملک ڈیری فارم کھولوں گا۔ شہر بھر میں میرے دودھ کی گاڑیاں چلیں گی۔ لوگ کہیں گے، وہ دیکھو ملک خیالی سیٹھ جا رہا ہے۔ اتنا سوچ کر ملک خیالی نے مونچھوں کو تاؤ دیا، حالانکہ اس کی مونچھیں ابھی آئی ہی نہیں تھی۔ ٹھوکر نمبر 1، حلوائی کی دکان۔ خوابوں میں کھویا ملک خیالی چلتا چلتا حلوائی کی دکان کے سامنے پہنچ گیا۔ گرم گرم جلیبیاں تل رہی تھیں، شیرہ ابل رہا تھا۔ حلوائی نے آواز لگائی، ملک خیالی، خیریت؟ ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے؟ ملک خیالی ہڑبڑا کر رکا۔ ہیں؟ کون اڑ رہا ہے؟
मैं तो बस कारोबार का सोच रहा था। हलवाई हंसा। कौन सा कारोबार? तेरे हाथ में तो 1 रुपए के सिवा कुछ नहीं। मलिक ख़याली ने फ़ौरन मुट्ठी और भींच ली। यही 1 रुपया, इसी से मैं सल्तनत बनाऊंगा। तू देखता जा हलवाई भाई, कल को तू मुझसे उधार मांगेगा। हलवाई ने कह कहलाया, चल पहले ये बता, नाश्ता करेगा? 1 रुपए में 2 पूड़ियाँ और चने दे देता हूँ। अब मलिक ख़याली फंस गया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। पूड़ियों की खुशबू नाक में घुसकर दिमाग तक जा रही थी। मगर उसका ख़याली कारोबार भी तो था। नहीं, उसने दिल पर पत्थर रख कर कहा, मैं ये रुपया खर्च नहीं करूँगा। ये मेरा बीज है, इससे दरख्त उगेगा। हलवाई ने कंधे उचकाए, जैसे तेरी मर्जी, मगर याद रख, भूखे पेट ख्वाब नहीं देखे जाते। मलिक ख़याली सीना तान कर आगे बढ़ गया, मगर 2 कदम के बाद पेट ने गुर्र की आवाज़ निकाली। उसने जल्दी से पेट पर हाथ रखा। चुप, थोड़ा सब्र कर, जल्द ही हम अमीर होने वाले हैं। तीसरा चम्मच। गाड़ी, बंगला, शादी। अब मलिक ख़याली की सोच आसमान पर पहुंच चुकी थी। 30 रुपए से बकरी, बकरी से गाय, गाय से भैंस, भैंस से हाँ, मैं एक ट्रक खरीदूंगा। ट्रक में दूध लाद कर शहर जाऊंगा। फिर 2 ट्रक, फिर 10 ट्रक, फिर मैं मलिक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। फिर मैं बंगला बनाऊंगा। बंगले के आगे बड़ा सा गेट होगा। गेट पर लिखा होगा मलिक ख़याली। वल्लाह, यहाँ पहुँचकर उसे शादी का ख्याल आ गया। और फिर मैं शहर के सबसे बड़े सेठ की बेटी से शादी करूँगा। वो रोज़ कहेगी, ए जी, आज क्या खाएंगे? और मैं कहूँगा, जो जी चाहे मलका आलिया, तुम्हारे लिए तो चांद भी तोड़ लाऊं। इतना सोचकर मलिक ख़याली ने हवा में एक फ्लाइंग किस फेंकी। ऐन उसी वक्त गली में से गुजरती हुई खाला कुबरा ने देख लिया। हाय अल्लाह, मलिक ख़याली को क्या हो गया? दिन दहाड़े हवाइयाँ उड़ा रहा है। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। ठोकर नंबर 2। स्कूल के बच्चे। आगे चौक में स्कूल के बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे का गोल गप्पा लुढ़क कर मलिक ख़याली के पाँव में आ गया। बच्चा भागता हुआ आया, अंकल, मेरा गप्पा। मलिक ख़याली ने उसे घूरा। अंकल, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं मुस्तकबिल का सेठ मलिक ख़याली हूँ, और तू मुझसे गप्पा मांग रहा है। बच्चा डर कर पीछे हटा। उसके दोस्त हंसने लगे। सेठ मलिक ख़याली, जेब में 1 रुपया और ख्वाब दुबई के। मलिक ख़याली का मुंह लाल हो गया। हंसते क्यों हो? कल को तुम लोग मेरे डेयरी फार्म पर नौकरी मांगने आओगे। ये कहकर वो पैर पटकता हुआ आगे बढ़ा, मगर जल्दी में उसका पाँव गप्पे पर पड़ गया। चिड़ की आवाज़ आई और गप्पा पिचक गया। बच्चे और ज़ोर से हंसे। मलिक ख़याली ने शर्मिंदा होकर मुट्ठी और ज़ोर से भींची। सिक्का हथेली में चुभने लगा। चौथा चम्मच। वज़ीर आज़म से मुलाकात। अब मलिक ख़याली के ख्वाब सरहद पार कर चुके थे। जब मैं मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी बन जाऊंगा, तो वज़ीर आज़म ख़ुद मुझसे मिलने आएगा और कहेगा, मलिक साहब, आप हमारी मईशत का सहारा हैं, बताइए मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? और मैं कहूँगा, जनाब, पहले मेरी भैंसों के लिए चारे का बंदोबस्त करें, बाकी मैं संभाल लूँगा। ये सोच कर वो इतना खो गया कि उसे सामने का खंबा नज़र ही ना आया। बड़ी ठोकर, धड़ाम, ढूं की आवाज़ आई और मलिक ख़याली खंबे से जा टकराया। मुट्ठी खुली और 1 रुपए का सिक्का छन से उछलकर सीधा नाली में जा गिरा। मलिक ख़याली की चीख निकली, नहीं!
वो घुटनों के बल गिरा और नाली में हाथ डाल दिया। कीचड़, कागज़, पत्तियाँ, सब कुछ था, सिक्का गायब। पानी के बहाव के साथ ना जाने वो कहाँ बह गया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हलवाई दुकान से निकला, खाला कुबरा खिड़की में आ गई और स्कूल के बच्चे तमाशा देखने लगे। क्या हुआ मलिक ख़याली? हलवाई ने पूछा। मलिक ख़याली ने कीचड़ में लथड़ा हुआ हाथ उठाया और रूहान सा होकर बोला, मेरी सल्तनत, मेरा डेयरी फार्म, मेरे 10 ट्रक, मेरा बंगला, मेरी शादी, सब नाली में बह गए। लोग पहले हैरान हुए, फिर किसी की हंसी छूट गई, फिर दूसरे की। देखते ही देखते पूरा चौक कहकों से गूंज उठा। खाला कुबरा ने सर पर हाथ मारा। हाय मैं सदके, 1 रुपए में इतना बड़ा नुकसान कर लिया तूने। मुन्ने का अब्बा अखबार समेटते हुए बोला, बेटा, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, मगर पहले पाँव ज़मीन पर रखे जाते हैं। संभलना और सीखना। मलिक ख़याली वहीं नाली के किनारे बैठा रहा। कीचड़ सूख कर उसके हाथ पर पपड़ी बन गई। आहिस्ता आहिस्ता हंसी का शोर थमा। लोग अपने कामों पर लग गए। हलवाई उसके पास आया। एक प्लेट में 2 गरम पूड़ियाँ और चने थे। उसने प्लेट मलिक ख़याली के आगे रखी। ले खा ले, उधार है, जब कभी तेरा डेयरी फार्म बने तो वापस कर देना। मलिक ख़याली ने नम आँखों से हलवाई को देखा, फिर पूड़ी की तरफ। पेट ने फिर गुर किया। उसने एक पूड़ी तोड़ी और मुंह में रखी। गर्मा गर्म, खस्ता, मज़ेदार। चंद लम्हे बाद वो खुद भी हंस पड़ा। पहले हल्का सा, फिर ज़ोर ज़ोर से। हा, 1 रुपए का सिक्का और मैं चांद पर दुकान खोल बैठा था। हलवाई भी हंसने लगा। अब समझ आया? मलिक ख़याली ने सर हिलाया। हाँ उस्ताद, समझ आ गया। पहले 1 रुपए से 2 पूड़ियाँ खानी है, फिर मेहनत करनी है, फिर ख्वाब देखने हैं। शाम का मंजर और सबक। शाम ढल रही थी। मस्जिद से मगरिब की आज़ान हुई। चिड़ियाँ अपने घोंसलों को लौट रही थीं। मलिक ख़याली में नाली के पानी में हाथ धोया, हलवाई का शुक्र अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो रुका, जेब टटोली, खाली थी मगर दिल हल्का था। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था मगर उसकी रोशनी अब भी बाकी थी। वो मुस्कुराया और ख़ुद से बोला, मलिक ख़याली, आज तो तूने 1 रुपया खोया मगर एक बहुत बड़ी बात सीख ली। ख्वाब ज़रूर देखो मगर पहला कदम हमेशा ज़मीन पर रखो। बीज बोने से पहले ज़मीन तैयार करो, वरना सिक्का तो नाली में बहेगा ही, साथ में बंगला, ट्रक, भैंस, शादी, सब बह जाएंगे। गली के नुक्कड़ पर स्कूल वाला बच्चा खड़ा था। मलिक ख़याली उसके पास गया, जेब से एक टॉफ़ी निकाली जो सुबह से पड़ी थी और बच्चे को दी। ले भाई, तेरे गप्पे के बदले, और आइंदा मुझे सेठ ना कहना। अभी मैं ज़ेरे तरबियत मलिक ख़याली हूँ। बच्चा हंसा और भाग गया। सबक। और यूँ मलिक ख़याली ने सीखा कि ख्वाब देखना अच्छी बात है मगर ख्वाबों की इमारत मेहनत की ईंटों से बनती है, ख़याली पुलाव से नहीं। पहले काम फिर इनाम, पहले बीज फिर दरख्त, वरना 1 रुपए के साथ पूरी सल्तनत नाली में बह जाती है। मलिक ख़याली की कहानियाँ इंतहाई मज़ेदार और साथ में अच्छे सबक के साथ भी होती हैं। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी हर नई वीडियो पहुंचती रहे और आप भी हंसी से लोट पोट होने के साथ अच्छा सा सबक भी सीखें।